Hello friends, this is Ashok Riwal. I welcome you all in today's daily dose, the Hindu vocabulary and quiz class. Yes, my dear friends, today we are going to discuss today's word of the day. We'll go with the word of the day and we'll go with the quiz also, and then idioms and phrases too, right? So stay tuned with our class, and I'm sure that these classes are going to help you a lot and this will help you in your all competitive exams. जी बिल्कुल, ये क्लास आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगी आपकी, चाहे वो एनडीए क्लास हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, सीटेट हो, एस्टेट हो, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें वोकेबुलरी आती है उन सभी में ये आपकी हेल्प करेगी. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्लास. Please subscribe A.Rival's classes and don't forget to press the bell icon for latest updates so that you may enjoy our latest videos. So let's start. Today's word of the day. The word of the day is pleasurize. The word is pleasurize. Pleasurize. You must have seen this word. You must have heard in your masters when you write something, when you write your own thesis. So what is the meaning? It's a verb, right? Take the work or an idea of someone else and pass it off as one's own. Means किसी के आइडिया को चुरा कर अपने नाम से पब्लिश कर लेना ही प्लेजराइज कहलाता है. दूसरे के ग्रंथ से चोरी करना, किसी की अनुकृति करना, नकल करना प्लेजराइज कहलाता है. वी कॉल इट सिनोनिम पायरेट. पायरेसी आप लोगों ने सुना होगा. इट्स अ क्राइम अंडर लॉ. पायरेट, स्टील, चुराना, पोच. यूसेज यू कैन टेक इट. ही वॉज फाइंड $6,000 for having plagiarized the song. किसी के song को उसने अपने नाम से publish कर लिया, so that is plagiarize. Okay, this is today's word of the day. So let's move towards the today's phrase. First idiom we'll see. See, what is the meaning of this idiom here? To pay off old scores. To pay off old scores, पुराने scores को pay off कर देना, means to harm someone because they have harmed you in the past. Obviously, कोई पुराना score, पुराना हिसाब किताब रहता था आपका, वो आपने पूरा कर लिया. Means to harm someone because they have harmed you in the past. आप किसी को harm करना क्योंकि उन्होंने आपको past में harm किया था. The president used his speech to pay off old scores with his opponent. अपने opponents को उसने old scores से pay off कर दिया. Because क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको पिछले harm किया था. The 6 and 7s that we have discussed yesterday too in yesterday's class, that was in means which is in disorder, properly chaotic manner. 6 and 7s. So this was the word of the day, idiom and phrase of the day. So let's move. Phrasal verb of the day. What is a phrasal verb of the day? What does this mean? See, so meaning is here chicken out. The word chicken out. Meaning means to decide. See, chicken hearted आप लोगों ने सुना होगा. Chicken hearted. Chicken hearted क्या होता है? Coward. Coward. कायर टाइप का. Meek. डरपोक टाइप का जिसको हम बोल सकते हैं. So वही chicken out means here to decide not to do something because one is afraid. वही सेम मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो क्या चाहता है, बिकॉज वो डरा हुआ है. ही वॉज गोइंग टू आस्क हर ऑन अ डेट बट ही चिकन आउट एट द लास्ट मिनट. लास्ट मिनट पे वो घबरा गया, डर गया. ही वॉज अनेबल टू डिसाइड. सो दिस वॉज चिकन आउट. दिस स्लीप ओवर, स्पेंड द नाइट एट अ प्लेस अदर देन वंस ओन होम. जब हम अपने घर को छोड़कर कहीं और जाकर सोते हैं, स्लीप ओवर. सो दैट वी कॉल स्लीप ओवर. Spend the night at a place other than one's own home. अपने घर के अलावा हम बाहर जाकर सोते हैं. Katie was asked to sleep over with Jenny, right? So this was the phrasal verb. So we move towards today's quiz. Quiz of the day. Today first we'll go with the vocabulary quiz. So today we are going to have these wonderful questions. They are really going to help you. See, I will tell you all the answers. हमारे पास 4 वर्ड हैं, ये मीनिंग है, ये वर्ड है. इन सभी के हम लोग आंसर्स भी देखेंगे, इनके मैं मीनिंग भी आपके साथ शेयर करूँगा, राइट? सो आप इनको बड़े ध्यान से देखें. एंड स्टिल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, यू कैन सब्सक्राइब इट बिकॉज डेली वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इन दीज वोकैब. डेली हम लोग एक क्विज है, जो डेली क्विज है
डेली वोकैब है, डेली डोज है द हिंदू न्यूज़पेपर से। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ दैट these words, this dose, this is taken from the Hindu newspaper. And you know very well, the Hindu newspaper is very good, very great in all the competitive exam. जितने भी IAS, UPSC की तैयारी करते हैं, NDA की तैयारी करते हैं, वो द हिंदू न्यूज़पेपर को ही प्रेफर करते हैं। सो ये फ्रेजल जो हैं, फ्रेजल वर्ब्स और जो क्विज होगा वो द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। क्योंकि अगर हमें इन चारों के मीनिंग पता होगा तभी हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डलसेट मीन्स होता है फ्रेंड्स एक कूल एंड काम वॉइस, एक सूदिंग साउंड, स्पेशली एक सूदिंग साउंड होती है दैट वी कॉल डलसेट। सो डलसेट सूदिंग साउंड होती है, एक म्यूजिक होता है, रिलैक्सिंग म्यूजिक होता है डलसेट। अब इन चारों के मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। प्रेजिंग, प्रेज करना, तारीफ करना, वेरी इजी। रिस्पेक्टफुल, वही रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्टफुल होना किसी के लिए। क्लोनिंग, क्लाउन आप लोगों ने सुना होगा, मस्करा जो मजाक करता है, ठीक है, एक फुलरी किसी को हंसाने के लिए मजाक करता है, जोक वगैरह करता है, दैट वी कॉल क्लोनिंग। सो मेलो, MELLOW, mellow means here a sweet sound, right? Very soothing sound, very calm sound, just to make someone relax. So what is the meaning? This one is mellow is the meaning of dulcet, right? I hope you are understanding it. So by this way I'll tell you the meaning of all four words. सभी के मीनिंग हम लोग जानेंगे, इसका मीनिंग भी देखेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। सो आंसर देख लेते हैं। मेलो, ऑब्वियसली द मेलो इज द राइट आंसर, एंड dulcet especially of sound sweet and soothing, right? Mellow. So let's move towards the next word. Next question is synonym of sedulous. आपको sedulous का synonym देखना है, SEDULOUS। पहली बात तो आपको sedulous का मीनिंग पता होना चाहिए। sedulous का मीनिंग होता है फ्रेंड्स showing dedication, राइट? आप अपना डेडिकेशन शो करते हो किसी के प्रति, दैट वी कॉल sedulous, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? अब इन बाकी चार के मीनिंग भी हम लोग देख लेते हैं। इन चार के मीनिंग क्या हैं? बफनरी मीन्स होता है अगेन सम फूलिंग टास्क, सम फुलिश टास्क। सम फुलिश टास्क, एक प्लेफुल बिहेवियर जिसको बोलते हैं, ठीक है। इनकम्पिटेंट, जो कम्पिटेंट ना हो, जो एबल ना हो, योग्य ना हो उस चीज़ के। अनस्किल्ड, द सेम वन हु इज नॉट स्किल्ड वन, प्रॉपर स्किल्ड नहीं है। तो लास्ट वन क्या बता है? एसिडियस मीन्स हियर द सेम, शोइंग डेडिकेशन। So assiduous means dedication. So what will be the meaning of this assiduous? देख लेते हैं। Yes, this is the right answer, showing dedication and diligence. Right answer. Question number 3, synonym of inapt. You must know the meaning of inapt, right? So what is the meaning of inapt first? पहले बात हमें inapt का meaning पता हो, then we'll discuss the other one. So inept means होता है फ्रेंड्स which is not very skilled, again जो बहुत अच्छा ना हो, बहुत ग्रेट ना हो, ठीक है। तो मीनिंग देख लेते हैं। फ्रेंचाइज्ड मीन जो ये वर्ड है इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स एंग्री। फ्रेंचाइज मीन्स एंग्री, ठीक है। तो इनेप्ट होता है अनस्किल्ड, तो ये तो नहीं बना इससे। हेक्टिक मीन्स वेरी बिजी, यू नो वेरी वेल हेक्टिक। आज मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक था, वेरी बिजी, सो दिस कैन नॉट ऑल्सो बी द आंसर, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन इज फीवर्ड, किसी को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाना, मुझे फीवर हो गया, फीवर, सो हाई टेम्परेचर होना, सो फीवर्ड, राइट? तो ये भी नहीं हो सकता। एक्सपर्ट बिल्कुल ईजी है, इनएक्सपर्ट मीन्स वही अनस्किल्ड,
जो इसके लिए, तो क्या वर्ड होगा? इनएप्ट के लिए क्या होगा? इनएक्सपर्ट. दिस इज द राइट आंसर. हैविंग, शोइंग नो स्किल और क्लमजी, राइट? सो हैविंग नो स्किल. सो inept means inexpert. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉस. ड्रॉस का मीनिंग अगर हम देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉस? ड्रॉस का मीनिंग होता है यूजलेस. Dross means useless. Now let's start the meaning of all these 4 words. Aboriginal. Aboriginal means बहुत टाइम पहले से जो एक काइंड ऑफ प्रजाति जिसको बोलते हैं, जिसको हम आदिवासी जो लोग होते हैं वो होते हैं Aboriginal. इम्पोर्ट किए गए, कहीं से लाए गए होते हैं. इमिग्रेंट होता है जो अपने देश को छोड़कर हैज़ कम इनटू अ फॉरेन कंट्री, जो किसी दूसरी कंट्री में इमिग्रेंट हो गया है. माइग्रेट आना होता है, इमिग्रेंट जाना होता है. सो वन हु हैज़ कम इन अ फॉरेन कंट्री, जो एक फॉरेन कंट्री में आ गया है वहाँ पे रहने के लिए, इमिग्रेंट. सो रबिश, यूजलेस, बकवास, राइट? सो द मीनिंग ऑफ dross is rubbish. Yes, it is the right answer. Something regarded as the worthless, rubbish, useless. ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा फ्रेंड्स? ड्रॉस का रबिश. इन चारों के मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ. लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेरुलस. क्वेरुलस मीनिंग से नाम पढ़ते ही पता चल गया होगा. क्वेरुलस, क्वेरुलस मीन्स एक झगड़ालू जो हमेशा कंप्लेंट करता हो, लड़ाई करता हो, झगड़े करता हो, दैट वी कॉल क्वेरुलस. सो क्वालसम से बना है. ठीक है, तो इसके मीनिंग देख लेते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदर वर्ड्स? क्लियर, तो इजी है, बिल्कुल क्लियर, जो क्लियर हो. इल्यूसिव, ELUSIVE, इल्यूसिव. इल्यूसिव मीन्स क्या होता है? विच इज़ नॉट ईजी टू कैच, नॉट ईजी टू कैच, पकड़ने में ईजी न हो. ठीक है, और नॉट ईजी टू फाइंड, जिसको हम अच्छे से न ढूंढ सकें, ना प्राप्त कर सकें, इल्यूसिव होता है. ठीक है, क्लियर होता है. इनडेफिनेट, डेफिनेट निश्चित, इनडेफिनेट अनिश्चित, सिंपल सी बात है. नॉट फिक्स्ड, indefinite not fixed. So last one is petulant, PETULANT, petulant. So what is the meaning of quarrelsome is petulant, क्योंकि petulant का meaning क्या होता है? bad tempered. petulant means bad tempered, angry, गुस्से में आ जाने वाला. quarrelsome भी तो वही था, झगड़ा करने वाला, गुस्सा करने वाला, है ना? So the synonym of this word is petulant. Yes, this is the right answer. Complaining in rather petulant or winning manner, हमेशा शिकायत करने वाला. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. डिबेकल. What is the meaning of debacle? DEBACLE, debacle, right? डिबेकल का मीनिंग क्या होता है? पहले हम आपका डिबेकल का मीनिंग बताएंगे. डिबेकल मीन्स अ फियास्को, अ फेलियर. फेलियर, डिबेकल. तो फेलियर तो बिल्कुल सामने दिया ही हुआ है. डिबेकल जो जीतने वाला ना हो, फेलियर हो. ठीक है, बाकी के मीनिंग हम देख लेते हैं. विनर, जीतना, सक्सेस भी जीतना होता है. स्मैश करना, किसी चीज़ को स्मैश करना. ठीक है, लेट्स सी द मीनिंग ऑफ डिबेकल मीन्स फेलियर. अ सडन एंड इग्नोमिनियस फेलियर और फियास्को, शिकस्त होना, हार होना. ठीक है, फेलियर. नेक्स्ट, the last, this would be the last question of today's quiz. foe बहुत easy है. foe होता है enemy, आपका दुश्मन. ठीक है, foe means क्या होता है? enemy. ठीक है, now we'll see the meaning of all these words. Antagonist. Antagonist, you must know the meaning of antagonist. One who strongly against, जो किसी के strongly against हो, बिल्कुल अलग हो, antagonist. इसका उल्टा क्या होता है? protagonist. ठीक है, protagonist, और उल्टा इसका antagonist. adversary होता है किसी से कंपटीशन में अपोनेंट होना. इन अ कंपटीशन, अपोनेंट इन अ कंपटीशन, स्पेशली कंपटीशन में अलग होना, अपोजिट होना, एडवर्सरी कहलाता है. हॉस्टाइल, यू नो वेरी वेल. हॉस्टाइल मीन्स क्या? वेरी एंग्री,
उग्र होना, कहते हैं ये बहुत हॉस्टाइल है, एंग्री है। तो ये तो रहे इन 3 के मीनिंग। अब एमिगो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिगो? एमिगो मीन्स होता है फ्रेंड एनिमी, राइट, फो। और enemy. So what is the meaning of this word foe? That is amigo, right? This is the right answer. Amigo, an enemy or opponent. एक लड़ाई में अलग होना अलग होता है एनिमी, और किसी कंपटीशन में अलग होना वो अलग होता है। सो एडवर्सरी इज इन अपोनेंट इन कंपटीशन, बट हियर एनिमी, एमिगो इज अ एनिमी, किसी रीजन वर्स, किसी कारण से किसी से लड़ाई होना, ठीक है। So these are the words. I hope you have understood it. It's very easy. We have discussed. See, you have answered 7 out of 7. It's very great. So by this way, we daily bring this video. If you are new on our channel, you can subscribe it. I request you, please subscribe A. Rival's classes, so that daily we bring this quiz, this vocabulary. This would be helpful for you in your all the competitive exams. Till then, stay happy, stay tuned. Bye bye.